السلام علیکم اشر بھائی، تھوڑا زور سے بولنا پڑے گا آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو ایجنڈا تھا آج کا، تو اس حوالے سے ہم نے جو اپنی روایات اسلامی ممالک کی اور اپنے اسلام کی پرانی روایات جو ہے ہماری، اور سلطنت عثمانیہ اور اس سے پہلے کے 14 سال پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو سونے مدینے کی تجارت سکھائی بتائی، اس حوالے سے یہ ہے۔ اور آج کل کے حوالے سے جو ہے ہم نے تھوڑا سا یہ سوچا ہے اس چیز کے لیے، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو، لیکن ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس وقت موجودہ حالات میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے جس طرح ہمارے تمام معدنیات پہ اور ہماری تمام اکانومی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ سب کو دیکھنی چاہیے، اور جب وہ اس پر تجزیہ کریں گے، تحقیق کریں گے، تحقیق کا حکم ہے ہمیں، تو اس میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ وہ یہ ہے اس چیز کا کہ ہم اپنی جتنی بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، جس میں آٹا، دال، چاول اور تیل اجناس ہے، کپڑے ہیں، اس قسم کے آئٹم جو ہر انسان کی ضرورت ہے، ضرورت میں شامل ہے، اس کے لیے ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے۔ اگر ہماری حکومتیں یا ہمارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے ہمیں یہ یونٹس قائم کرنے چاہیے، تاکہ ہم ایسے مومنین، ایسے لوگ جو دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا معاشی نظام بہتر کر لیں، کیونکہ فقر جو ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے، تو اس کی کوشش ہم نے سب نے مل کے کرنی ہے۔ تو اس میں جیسے یہ ہے کہ ایک چھوٹی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ ناظم آباد میں رہتا ہے، اگر تو وہ چاہے کہ گندم میں خود کفیل ہو جائے ناظم آباد کے حوالے سے، جیسے گندم کا سیزن آتا ہے اس میں وہ 4 ٹرک 5 ٹرک جو اس کی استطاعت کے مطابق ہے وہ خرید لے، خریدنے کے بعد 100 روپے کی اس نے گندم لی مثال کے طور پہ، تو 20 روپے پروفٹ رکھ لے کلو کے اوپر، اب 120 روپے اس کا پروفٹ اس پہ شامل ہو گیا۔ اب جب گندم کے ریٹ بڑھیں گے یا کچھ ہوگا تو وہ اس پروفٹ میں ہی بیچ سکتا ہے، اس کا نقصان کہیں نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اس تجارت میں شامل ہو جائے گا، سنت تجارت کے اندر، اور وہ اس خدمت میں شامل ہو جائے گا جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو اس میں اس کے روزگار میں برکت بھی ہوگی اور مسلمان کو فائدہ بھی ہوگا اس چیز کا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ یوں ہم آہستہ آہستہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ہر قسم کی ضروریات کی چیز۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ریٹ بھلے 150 روپے چل رہا ہوں، لیکن آپ نے اگر 100 کا لیا ہے تو آپ 20 روپے منافع رکھ کے اس کو دیتے رہیں۔ 30 روپے جو بھی منافع پہلی دفعہ آپ نے رکھا ہے وہ تو آپ نے رکھ لیا نا۔ اب جو مارکیٹ میں یعنی کہ جو اب جیسے اس وقت ہے کہ اچانک ایک چیز کے پاس مال پڑا ہوا ہے، میں 100 روپے کا خریدا تھا، 120 روپے کے میں 120 کا بیچ رہا تھا، اچانک مارکیٹ تیز ہو گئی تو میں نے بھی تیز کر دی، حالانکہ جبکہ میں نے تو مارکیٹ سے نہیں خریدا ہے مہنگا۔ اچھا، اب جب میں نیا مارکیٹ سے خریدوں گا تو اس میں بھی 30 روپے رکھ کے دے دوں گا، اگر مہنگا خریدوں گا تو میرا پروفٹ مارجن تو وہی ہے نا۔ ہول سیل اور ریٹیل کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ریٹیل والے جو ہیں وہ کسی چیز کے اوپر 40 سے 50 روپے رکھ کے کرتے ہیں، اور ہول سیل والے جو ہیں وہ 10 روپے 5 روپے 8 روپے رکھ کے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، لیکن پروفٹ مارجن تو اس کا وہی ہے نا۔ اگر کاسٹ نیچے چلی جائے گی پروفٹ مارجن تو وہی رکھے گا اپنا جو اس نے رکھنا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کاسٹ کے اوپر مزید پروفٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، مندی کے ذخیرہ اندوزی کے اس میں آتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ پھر مفتی صاحب حضرات بتائیں گے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل، لیکن میں اپنا ایک خدمت کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا کاروبار، ہمارا ہنر جو بھی ہے وہ کسی کے کام آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو تجارت سکھائی تو اس کے پیسے نہیں لیے، لوگوں کو بتایا، سمجھایا، ان کو کھڑا کیا اس چیز کے اوپر تاکہ مسلمان کھڑا ہو جائے۔ تو اصل میں تو ہماری تجارت تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم کتنی بھی بھاگ دوڑ کر لیں، کتنی بھی ہوشیاری کر لیں، کتنا ہی پیسہ لگا لیں، لیکن جب تک برکت نہیں آئے گی اس میں تو ہمارا پورا بھی نہیں ہوگا اور ہم کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو دینی حوالے سے معاملے کو دیکھنا ہے نا، ہمارے ہنر ہر چیز کو۔ آپ میرے خیال میں ایسا بزنس ماڈل بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر نہ آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے بہت زیادہ، نہ آپ کو جو ہے نا وہ اس چیز کی فکر ہے کہ فکر کی ضرورت ہے کہ بھئی میری سیل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سمپل سا آپ نے بتا دیا کہ بھئی باقی لوگ تو ذخیرہ اندوزی کر کے ریٹ بڑھا کے بیچ رہے ہیں، آپ کریں سیدھا سیدھا کاروبار کریں، خریدیں اور بیچیں۔ اتنا آسان ہے کہ یہ؟ دیکھیں مارکیٹنگ اور تمام چیزیں جو ہیں آج کل تو ماشاء اللہ بہت آسان ہو گئی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہے مارکیٹنگ میں، چلے آٹے کی اس میں تو مارکیٹنگ سمجھ میں نہیں آتی، مارکیٹنگ ہوتی ہی نہیں ہوتی، حالانکہ تھوڑے بہت ٹی وی میں اشتہار تو آتے ہیں جو بڑے چکی بڑے آٹے ہے نا، جیسے بیک پارلر ہے سب چیز، ٹھیک ہے وہ کر، لیکن مارکیٹنگ سے ہوتا ہے کیا ہے کہ چیز کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک چیز 100 روپے کی ہے، اس پہ ٹرانسپورٹیشن وغیرہ لگا کے پیکنگ وغیرہ لگا کے وہ ہو گئی 110 روپے کی۔ اب آپ نے اس کو بیچنے کے لیے جو ایکسٹرا مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں اس کے آپ نے 10 روپے اور لگا دیے، حالانکہ اگر آپ کا ریٹ مناسب ہو، پروفٹ آپ نے کم سے کم رکھا ہو تو خود بخود ہی چیز بک سکتی ہے۔ دیکھیں وہ آپ کے وہ کاسٹ بڑھے گی نہیں، وہ مارکیٹنگ والی کاسٹ نہیں بڑھے گی۔ آج کل میں اپنی بات، آج کل کمرشلائزیشن کی وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیکیجنگ کے اوپر اتنا خرچ کرتے ہیں،
परफ्यूम इसके अंदर जो ना, अरशद भाई यहाँ बैठे हुए हैं परफ्यूम के हवाले से। अरशद भाई आप इस बात पे एग्री करेंगे मेरे ख्याल में कि परफ्यूम तो उसमें 500 रुपये का है, लेकिन डब्बा और उसका जो वो बोतल है वो भी 500 रुपये की है, उससे भी ज़्यादा महंगी है। उससे भी ज़्यादा महंगी है ना। तो ये जो कमर्शलाइजेशन हो गई है ना और ब्रांडिंग हो गई है, ये असल में मेरा ख्याल में ये हमारा तरीका नहीं है मुसलमानों का, ये बाहर से आया हुआ है सारा। ब्रांड की बोतल जो जूस बोतल है मार्केट में खरीदे हैं कम से कम 800-800 रुपए की, अगर वो भी एक खाली बोतल मिलेगी आपको ब्रांड की बोतल, जो क्या है मैं इसमें फ्री फिलिंग करके ब्रांडेड बना के भेज दूँ। सही है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अशर भाई आपका ये इस वाले से क्या मेरा मकसद देखें ये है कि ज़रूरियात की बात कर रहा हूँ। जरूरियात है ना? बहुत बड़ी है, सही है। ठीक है ना। कराची के आवाम 5 करोड़ तकरीबन, कारोबार में सबसे पहले 3 रोज़गार करोड़ है ना, 5 हो गई तकरीबन। अच्छा, देखें वो तो ज़्यादा शुमार लोग खुद भी जानते कोई कुछ कहता है लेकिन बहरहाल हैं, तकरीबन बता रहा हूं। बात यह है कि सबसे पहले इंसान अपना बजट बनाए कि मेरा बजट कितना है। किसकी बात कर रहे हैं? जो बंदा बिजनेस कर रहा है जो वो? बिजनेस कर रहा है अच्छा, उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है। हमारे यहाँ कोई किसी भी चीज़ के बारे में, कारोबार करने के बारे में लोगों का मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं काम करने के। किसी को दूध की दुकान देखी खोली हुई, बड़ा कमा रहा है, खोल के बैठ गया, खुद भी खोल लिया। उसके बारे में कोई तहकीक, कोई मामलात नहीं किए, ना वहाँ पे वक्त लगाया। सही है, ठीक है। ठीक है ना। फिर बाद में रोते हैं नुकसान होता है, नुकसान हो गया। वो कारोबार ख़राब नहीं है, आपके लिए ख़राब था। क्यों? आपने उसकी स्ट्रेटजी सही अख्तियार नहीं करी। मेरा बजट 80,000 रुपये का है, ठीक है। मैं 80,000 के लिए कोशिश करूँ, मैं मज़ीद 24 घंटे रात जागना, पंचायत करना, मैंने अपनी ब्रांचेस खोल लेना, ये क्या ज़रूरत है? अच्छा, मैं आया किस मकसद के लिए, ये पता होना चाहिए ना मुझे। मैं क्या कमाने के लिए आया? कमाना ज़रूर है। हम तो असल में वैसे तो मुसलमान बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी नीयत की हो कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा फिर हाँ तो मिले, मेरा काम अगर बढ़ रहा फिर तो है बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बढ़ाऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर बढ़ नहीं रहा, मैं खामा खाई इसको बढ़ाने के लिए मेहनत करता रहूँ, तो मैं मसाइल में हाँ। फंस जाऊंगा ना। मैं अपने मौके से हट जाऊंगा। मतलब असूल ये है कि आपका कारोबार आपको जिक्र से गाफिल ना करते, वो जो एक आयत है ना। बिल्कुल। अगर कौन अल्लाह सी ने आयत है मुझे, अल्लाह ताला अपने काम जो है मुख्तलिफ लोगों से लेते हैं ना, अगर अल्लाह ताला ने मुझे उसके लिए रखा है कि मेरे हवाले से ये काम आगे बढ़ेगा, तो बिल्कुल वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो खुद ही बढ़ जाएगा। खुद ही बढ़ जाएगा। आप बहुत ज्यादा ऐसा ना करें कि आपकी नमाजें भी ज़ाया हो रही हो, आपकी तहज्जुद भी आप ना होती हो कभी, आप नमाज पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, इबादत भी आपकी 10 मिनट लगते हैं। नहीं, इससे तो मैं डिसएग्री करूंगा। नमाज प्रॉपर पढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए आपको पूरे दिन में। नहीं, पूरे दिन में नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर मस्जिद पे जाके अगर आप 10-15 मिनट नमाज में मुझे रखते हैं। अब अगर मैं जिस वक्त मैं अपना काम बंद कर दूँ अचानक, जिस वक्त अजान होती है, और वक्त पे पढ़ के आ जाऊँ, तो मेरे जमात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं वो काम नहीं करता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ, टाइम मेरा वही लगेगा, लेकिन मुझे एक नमाज का सवाब मिलेगा। हाँ ठीक है, टाइम मेरा वही लगना है, लेकिन अगर मैं वक्त पे उठ जाऊंगा, हालांकि 10-15 मिनट का फर्क होगा। असल बहस ये थी कि वक्त पर मस्जिद में पढ़ ली जाए तो उसमें ज़्यादा सवाब है, लेकिन कारोबार में जो लोग फंसे हुए होते हैं वो फिर इस चीज़ को इतना अहमियत नहीं देते। नहीं देते ना, तो अल्लाह भी फिर अहमियत नहीं देता। आप अल्लाह को अहमियत देंगे, अल्लाह के मामलात को अहमियत देंगे, अल्लाह बरकत भी डालेंगे, हर चीज़ कर देंगे अल्लाह ताला। बरकत के बगैर तो बिल्कुल। मुमकिन नहीं है, कारोबार में किसी भी चीज़ में आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं है। बस यही चीज़ है। हाँ। स्ट्रेटजी सीखना होगा, अल्लाह के नबी ने कारोबार कैसे सिखाया है, क्या किया, ये बातें मैं कारोबार वाले को मालूम होनी चाहिए ना। वो नहीं करेगा तो किस तरह से चलेगा? वो अपने जहन से चलेगा, अपने जहन से हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी ताकत, अपने पैसे से, अपने जहन से हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ अल्लाह की तरफ से। और आसान सी बात है ना, हमारे अमाल हमें जन्नत में लेके नहीं जाएंगे जब तक अल्लाह फजल नहीं करेंगे। हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि हम जन्नत में चले। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, आप समराइज करें कि आप क्या सोच लेकर आए थे कि हमने जो आज मीटअप रखा है मीटअप ये देखें, मैं इसके अंदर आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? मैं मशवरा ये दूंगा कि आपस में कम्युनिटी बिजनेस पे जाएं। सही है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप हैं, आपसे हम चीज़ें देखते हैं कि आपके पास एक चीज़ मिल रही है, तो वो चीज़ मैं वहाँ से नहीं आपसे ले लूँ। सही है, आप खड़े हो जाएंगे ना। ठीक है। मुझे तो वो चीज़ खरीदनी है, मुझे गुड़ खरीदना है, तो मैं आपसे क्यों नहीं? एक दूसरे को सपोर्ट करें, हाँ, लाइक माइंडेड लोगों को सपोर्ट करें। अब जैसे मैं आपके पास आया, आपका बिजनेस का तमाम चीज़ चल रही है, मैंने कहा जी ठीक है, मैं तेल में काम कर लेता हूँ, मेरी अगर तेल की सेटिंग है, तेल काम कर लिए, आपको मैं तेल भी दे रहा हूँ, मेरे पास भी तेल चल रहा है, तो बाकी लोगों को चाहिए कि उन्होंने तेल कहीं ना कहीं दुकान से खरीदना ही है ना, तो वो उनसे खरीद लें, वो मुनासिब रेट में देगा। मैंने आपको बताया ना कि अपना सबसे पहले अपने स्ट्रेटजी बनाएं कि आपने पैसे कितने कमाने, ताकि आप काम को एस्टिमेट कर सकें और अपने काम की तरफ तवज्जो दे सकें। सुबह से शाम तक काम करें, उसके बाद कोशिश करें कि अपना वक्त बच्चों में दें और दीन में दें, जो ज़रूरत की चीज़ है। अगर हम इससे हट के काम करेंगे, कारोबार को सब कुछ बना लेंगे, तो कुरान की आयतें मौजूद है, फिर अल्लाह ताला आपको उसी में लगा देंगे। जैसे अल्लाह से आप कहेंगे ना, मांगेंगे, वैसे ही अल्लाह आपको देंगे। इसका मतलब है कि अच्छा भाई, हमें फिर अपनी इस कम्युनिटी को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, लिमिट करना, इसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड करना पड़ेगा कि इस कम्युनिटी में जो लोग हैं वो ख़ास तौर पे सिर्फ ऐसे बिजनेसेस को अडॉप्ट करें जो कि इंसानों की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। सबसे पहले तो यही है ना। अब इसके अंदर अगर कोई ऐसे काम कर रहा होगा
क्या नाम है, फर्ज करें कोई इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी बेसिक नेसेसिटी में आएगा कि नहीं आएगा? देखें वो काम कर रहा है, मैं सर काम को मना नहीं कर रहा, अच्छा, वो अपना काम कर रहा है, वो अपने काम को अपने मुताबिक देख ले। सही है। मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था, मैंने काफ़ी इवेंट मैनेजमेंट अगर आप जंग के माहौल में देखें तो एक तरह की लग्जरी लगती है, जंग के माहौल में तो आपको खाने पीने को मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात अब है। एक आदमी आप पे करा रहा है, आप दे रहे हैं। इस वक्त तमाम चीज़ों में सबसे मेन चीज़ क्या है? ज़रूरियात है। सही है, जंग में भी क्या फिलिस्तीन में क्या चीज़ दिख रही है? खाना ही है। ठीक है ना। अच्छा वो खाना खरीद नहीं सकते, वो तो कोई और उनको खरीदते थे। हम्म, इस चीज़ को समझना चाहिए ना, हम ज़रूरियात से हट गए, ज़रूरियात को फोकस कर लें कम अज़ कम। इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे हैं कि पूरी जगह जंगें शुरू हो चुकी हैं। हम हट कैसे गए, ये बताएं आप कैसे हट गए? हम हम इसलिए सब कुछ चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, तारे चल रही हैं, बूफे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट बड़े बड़े चल रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन प्लेटर चल रहे हैं 1900 रुपए के प्लेटर में हैं। लेकिन लोग परेशान हैं। जिससे भी आप सवाल पूछें हाँ वो अपनी ख्वाहिशात तो कम नहीं करना चाह रहा, सही है, ज़रूरियात पे नहीं आना चाह रहा, ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। बाहर खाना खाना ज़रूरी है, जरूरी तो नहीं है। फिर ख्वाहिशात में आता है ना, हाँ। आप घर में भी खा सकते हैं। हाँ सुकून के लिए लोग कहते हैं, बाद लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार सुकून के लिए जाना चाहिए। सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, आप वहाँ कहाँ तलाश कर रहे हैं? ये ट्रेजेडी तो हमारी गलत है। अल्लाह ने तो आपको रोज़गार तमाम चीज़ें दी हैं, पानी सब कुछ आपने दिया, रोशनी भी दी है अल्लाह ताला ने आपको। आपने घर अपने कंजस्टेड बनाए सारे, इसमें आपकी गलती है। अच्छा, अल्लाह ने तो रोशनी दी है, हवा भी दी है आपको। आपको बिजली की ज़रूरत है, बिजली कहाँ जा रही है? मजबूर हो गए बिजली खरीदने के लिए। तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अगर चेंज नहीं करेंगे जब तक, तो हम इन मसाइल से नहीं निकल सकते। ये फिर बहुत लंबी तब्दील है हर चीज़ समझ। जो लोग आप देखें ना गांव की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सुकून में नहीं, उनके बिजली तो नहीं उनके पास, वो इसी बिजली को इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला की। और अगर अभी जंग हो जाती है हमारे यहाँ या और जगह हो रही है, सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो कबाड़ हो जाएगा शहर में। सुने इलेक्ट्रिसिटी गई, पानी नहीं आ सकता आपके, क्यों? मोटर चलेगी नहीं, पानी आएगा नहीं, क्या करेंगे? तो जो लोग वहाँ पे होंगे कामयाब होंगे ना, उनको फ्री की रोशनी भी मिल रही है, फ्री का पानी भी मिल रहा है। नेट बंद हो जाएगा तो ऑनलाइन वाले तो सारे गए बेचारे ना, कि हम जरूरियात पे यहाँ पे कभी नेट बंद होता है, मैं डिलीवरी नहीं करवा पाता क्योंकि लोकेशन नहीं चल रही होती। देखें हम जिस सदी में, हमने 2 सदियाँ देखी, ठीक है, हम जिस जनरेशन में, हमारी जनरेशन ने तो ये चीज़ देखी। हमारी जनरेशन क्या बोलते हैं, मिलेनियल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बगैर आजकल तो हर जनरेशन के नाम रख दिए ना, जेनजी अलग हो गया है, मिलेनियल्स अलग हो गए हैं, और एक और भी नाम है कोई। नहीं देखना होगा। देखें हम